So friends, today's lecture is going to be very important. Uh, uh, we are discussing today Unit 2, Accounting Concepts, Principles and Conventions. So basically it is just like learning the rules of any game. Like suppose if we want to play the chess, so we should first learn the all game of that chess so that we can play very well. In the same way, here in this unit 2, we are going to discuss the accounting concepts, principles and conventions. These are very important to have a correct or a very good accounting system in place, or we are saying the generally accepted accounting practices. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और ऐसा नहीं है आप जब सीए बन जाओगे एंड यू आर गोइंग टू वर्क और मे बी इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू लीड अ टीम, then there would be discussion in between you and the, say suppose, the partner of the audit firm. So that time these concepts will going to help you out, because that will show कि आपको कितना thorough knowledge है एक accounting का. अकाउंटिंग में आपको आपके प्रिंसिपल्स क्लियर है कि नहीं, आपके फंडामेंटल्स क्लियर है कि नहीं, तो ये बहुत हेल्प करेगा. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टुडे. इसको ध्यान से समझो, ठीक है. सो फर्स्ट द अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस. सो अभी ऑब्जेक्टिव क्या रखा है? टू ग्रास्प द बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स. जो इंस्टीट्यूट को हमसे एक एक्सपेक्टेशन क्या है कि बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट should be grasped by the students and their implications. उसका implications क्या होगा on recording the transaction and identify the qualitative characteristics of the financial statement. ये एक expectation है और हमारा objective है ये unit 2 को पढ़ने study करने का. Now introduction and need of uniformity. Why do we need standardized rules? बेसिकली अभी हमको एक फाइनेंशियल्स बनाना है, हमको अकाउंटिंग करना है. सो अकाउंटिंग शुड बी स्टैंडर्डाइज. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर फर्म कुछ अलग अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है और एक सम अदर फर्म इज़ फॉलोइंग सम अदर अकाउंटिंग, उनके हिसाब से कर रहा है अकाउंटिंग. अगर ऐसा चल रहा रहेगा तो फिर देर इज़ नो सिस्टम इन द कंट्री मे बी. सो टू हैव अ स्टैंडर्डाइज रूल, यूनिफॉर्मिटी हमको चाहिए, so that everyone will follow the uniform accounting. तो why do we need the standardized rules? हमको standardized rule का ज़रूरत क्या है? क्योंकि accounting first is a language of the business. तो language एक होना चाहिए. सपोज कोई अलग लैंग्वेज बोल रहा है, कोई किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो कम्युनिकेशन होगा क्या? नहीं होगा. वैसे अगर सभी लोग अलग अलग अकाउंटिंग फॉलो करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है, अकाउंटिंग एजम्पशंस है, अगर वो सब अलग अलग रहे तो can we compare the financials of those entities? No. So it's a language of the business. So language should be the same. Then financial statements communicate financial information to the stakeholders. Abhi stakeholder may have investment in many companies. So they will need a uniform accounting. ABCA Limited से कुछ अलग अकाउंटिंग आ रहा है, XYZ Limited से कुछ अलग अकाउंटिंग आ रहा है. So that will not help them out to make a good decision, correct decision. So to have a correct decision, we want uniformity in accounting, in financial information. If every accountant apply their own norms, need to record, it would be lead to utter confusion and widely different profit calculation. Profit calculation would be different. तो क्या होगा कि भाई एक पॉलिसी बोलती है, इस पॉलिसी को आपने फॉलो किया, आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होगा? एकदम मस्त हो जाएगा, एकदम जंप मारेगा. तो सब लोग क्या करेंगे, यार यही अकाउंटिंग पॉलिसी हम फॉलो करते हैं. सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट. अकाउंटिंग कैलकुलेशन, द प्रॉफिट कैलकुलेशन शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड बाय फॉलोइंग द स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज. टू अचीव यूनिफॉर्मिटी इन अंडरटेकिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस अप्लाइड व्हेन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. So to achieve uniformity and understanding the accounting process is applied when the conceptual framework of generally accepted accounting principles. कैसे बन जाता है ये अकाउंटिंग पॉलिसी और यूनिफॉर्मिटी कैसे आती है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है मार्केट में क्या पॉलिसीज चलती है?
डेप्रिसिएशन क्या मतलब जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या किया कैसा किया जाता है। तो अगर एक जनरली जो हम लोग अकाउंटिंग का जो पॉलिसी फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, दैट इज़ बिन यूज्ड. So generally accepted accounting policy is a backbone of the accounting. Globally standardization is achieved using the International Financial Reporting Standards basically. So IFRS is followed for international financial reporting, or Ind AS is followed by the listed companies. There are certain rules given. By those rules, it is prescribed which companies have to follow the Ind AS or not. So Ind AS are in line with the IFRS. Ind AS are in line with the IFRS. So we cannot fully follow the IFRS here. So there are some carve-outs given. Carve-outs are given under Ind AS. So we have suitably modified at few places IFRS, and we made a Ind AS. So it is in line with the IFRS, and AS is known as the accounting standard. Accounting standard is used by non-listed companies. They are using the accounting standards basically, and Ind AS is in line with the IFRS after putting some carve-outs. Defining the core terminology, concept, principle, and conventions. So accounting concepts, these define the assumptions basically, assumptions on which financial statements are prepared. Accounting concepts are the assumptions. ये एक ही चीज़ है, मतलब थोड़ा टर्म इधर उधर यूज़ करके यूज़ किया हुआ है, जैसे कंसेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशन ऑफर यूज इंटरचेंजेबली बेसिकली. They are the basic condition lying the foundation of the accounting. These concepts are simply the result of broad consensus. Broad consensus means broadly what principle, what policy the accounting team or the accounting guys are using. Then accounting principle. Accounting principle should be based on the real assumptions. Simple, understandable, then followed consistently. The accounting principle should be followed consistently. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार मैं डेप्रिसिएशन का कोई पॉलिसी एक यूज़ कर रहा हूँ, दूसरे साल मैंने एक चेंज कर दिया. एबल टू रिफ्लेक्ट द फ्यूचर प्रिडिक्शंस. वो अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसा होना चाहिए, मेरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए सो दैट आई कैन प्रिडिक्ट अ फ्यूचर. इंफॉर्मेशनल फॉर द यूज़र्स एंड इट शुड बी इंफॉर्मेशनल. मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी हो. तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट द नोट्स टू अकाउंट्स बेसिकली. उसमें नोट्स ऐसे होने चाहिए दैट इट विल एक्सप्लेन, दोज नोट्स विल एक्सप्लेन दी होल अकाउंटिंग. तो इन्फॉर्मेशनल फॉर द यूज़र के लिए फुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. अकाउंटिंग कन्वेंशंस, दीज मर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस और द पीरियड बेसिकली. तो कन्वेंशंस क्या होता है, ओवर द पीरियड जो ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो कर रहे हैं वहाँ से वो कन्वेंशंस निकल के आता है. Now we are talking about the fundamental accounting assumptions. So these are the fundamental accounting assumptions. So if not followed, the facts must be specially disclosed. So what they are saying here, कि fundamental accounting assumptions are going concern, consistency and accrual. These are the fundamental thing. But suppose if in any financial, if we are not following this, so that fact should be disclosed in the financials. उसका जिक्र होना चाहिए. जैसे अभी गोइंग कंसर्न का वी कैन टेक एग्जांपल. इट इज़ एज्यूम दैट माय बिजनेस इज़ रनिंग बेस्ड ऑन दी गोइंग कंसर्न एजम्पशंस. लेकिन क्या होता है कि सपोज आई एम रनिंग अ टेलीकॉम बिजनेस, आई एम टेकिंग एग्जांपल. उसमें ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने जो लाइसेंसेस थे, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने अभी जितने भी लाइसेंस थे वो डीरेगुलेट कर दिया, अभी किसी के पास लाइसेंस नहीं रहेगा. तो मेरा बिज़नेस आगे जाएगा क्या? गवर्नमेंट ने बोला नेक्स्ट एक साल के बाद में सबके लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए जाएंगे. सो इज़ देयर गोइंग कंसर्न फॉर मी? देयर इज़ नो गोइंग कंसर्न फॉर मी, क्योंकि एक साल के बाद में मेरे लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे. लेकिन अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो मेरे पास जो बिज़नेस है इट इज़ बेस्ड ऑन दी गोइंग कंसर्न एजम्पशंस. मैं जो भी कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, परचेज़ कर रहा हूँ, क्रेडिट परचेज़, क्रेडिट सेल्स, जो भी कर रहा हूँ,
इट इज़ बेस्ड ऑन दी गोइंग कंसर्न एजम्पशन। और अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है जिससे मुझे लगता है कि मेरा गोइंग कंसर्न अभी हैम्पर हो जाएगा, चलेगा नहीं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से या कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से, तो वो फैक्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। आई हैव टू स्पेसिफिकली डिस्क्लोज दैट फैक्ट इन माय फाइनेंशियल्स। कंसिस्टेंसी अगेन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जो स्लाइड्स है उसमें, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। कंसिस्टेंसी मीन्स कोई भी प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग पॉलिसी है, अकाउंटिंग एजम्पशन है, दैट शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। एक बार मैंने यूज़ किया, नेक्स्ट ईयर मैंने वो चेंज कर दिया, वापस नेक्स्ट ईयर चेंज किया, इट शुड नॉट बी, क्योंकि अगर कंसिस्टेंटली मैं फॉलो नहीं करूँगा सो माई फाइनेंशियल्स अगेन विल नॉट बी कंपेरेबल। लास्ट ईयर क्या फॉलो किया था, करंट ईयर क्या फॉलो कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली द अक्रूवल बेसिस तो आपको पता है कि देयर इज़ नथिंग टू डू विद दी कैश। मुझे कैश मिलता है, कलेक्शन मिलता है, मैं पेमेंट करता हूँ, नथिंग टू डू विद दैट। इट इज़ सिंपली अ मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन्स। मेरे पास जो ट्रांजेक्शन होता है सेल्स और परचेस का, जो भी ट्रांजेक्शन होगा, आई विल रिकॉर्ड एज इट इज़, आई विल रिकॉर्ड माई होल कॉस्ट एज इट इज़। जो बैलेंस प्रोविज़न करना है, आई विल डू सम प्रोविजनिंग। अगर मैंने एडवांस में पे किया है तो आई विल क्रिएट सम प्रीपेड, बट अक्रूवल प्रिंसिपल विल बी शुड बी फॉलोड। कैश के ऊपर मेरा अकाउंटिंग विल नॉट बी डन। सो विल एक्सप्लेन दिस थ्री थिंग्स इन कमिंग स्लाइड्स. So first concept in the accounting is the entity concept. Friends, try to understand the entity concept. It's saying separating the business from the owner. Suppose Mr. A is the owner. Mr. A is the owner. अब उसके कितने बिजनेस हो सकते हैं, उसके कितने बिजनेस हो सकते हैं? एक उसका होटल बिजनेस है, ठीक है, एक उसका ट्रैवल बिजनेस है, एक कोई उसका शॉप है, बराबर. सो व्हाट इज सेइंग, ओनर इज मिस्टर ए, is owning the hotel, again doing the traveling business, and shop is having. So owner is different from the business. So what will happen, accounting will be done based on मेरा होटल में कितना अकाउंटिंग होगा, ट्रैवल का मेरा अकाउंटिंग अलग होगा, शॉप का मेरा अकाउंटिंग अलग होगा. मिस्टर ए ने कुछ इनमें इन्वेस्ट किया होगा, होटल में, कुछ ट्रैवल में किया होगा, कुछ शॉप में किया होगा. So that will be known as a capital introduced by Mr. A in respective companies. बेसिकली ये इनके लिए कैपिटल हो जाएगा. और मिस्टर ए के लिए क्या हो जाएगा, मिस्टर ए के लिए इट विल बी अ इन्वेस्टमेंट. मिस्टर ए क्या बोलेगा, मेरे पास में 3 टाइप के बिजनेस है. आई इन्वेस्टेड दिस मच अमाउंट इन होटल बिजनेस, दिस मच इन ट्रैवल, एंड दिस मच इन शॉप. So entity concept says that the business enterprise is a separate entity apart from its owner. So it's a separate entity. तो यहाँ पे कितना एंटिटी है, एक ये एंटिटी है मेन, सेकेंड एंटिटी ये है, ये 2 एंटिटी है. बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स. मैंने बुक्स बनाई है, जो भी मेरे होटल के ट्रांजैक्शन होगा मुझे मेरे होटल के बुक्स में रिकॉर्ड होगा. और होटल और मिस्टर ए के बीच में का जो ट्रांजैक्शन होगा, दैट इज़ नथिंग बट द कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय मिस्टर ए एंड द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द मिस्टर ए. उस तरीके से हो जाएगा. द एंटरप्राइज इज टेक्निकली लायबल टू द ओनर फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय दे मेक एज इट इज़ रिस्क कैपिटल. बिजनेस टेक्निकली लायबल टू ओनर दे, ठीक है. सो एंटरप्राइज इज लायबल टू जस्ट रिटर्न द कैपिटल अमाउंट. अगर बिजनेस शट डाउन होता है तो बिजनेस हैज़ टू रिटर्न दैट कैपिटल अमाउंट टू द ओनर. वी कैन टेक वन एग्जाम्पल. मिस्टर एक्स स्टार्ट्स अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 7 लाख रुपीज़. ही हैज़ इन्वेस्टेड 7 लाख रुपीज़. किसने इन्वेस्ट किया, मिस्टर ए, एक्स ने. तो एक ये एंटिटी हो गया, फर्स्ट एंटिटी. बिजनेस जो हो गया सेकेंड एंटिटी हो गया. अब दोनों का अकाउंटिंग अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा. 7 लाख. ही बायज अ मशीनरी फॉर 5 lakhs एंड गिव्स 2 lakhs इन कैश. ठीक है. तो अभी जो बिजनेस है, बिजनेस का बैलेंस शीट कैसे बनेगा, बिजनेस में कैपिटल आया, कितना कैपिटल आया, 7 lakhs का कैपिटल आया, ठीक है. उसमें से उसने क्या बाय किया, मशीनरी 5 lakhs का, और कैश में अभी कितना पड़ा है, 2 lakhs. ये बैलेंस शीट टैली हो गया, ये बिजनेस का बैलेंस शीट हो गया. द बिजनेस ओन्स 7 lakhs कैपिटल, मशीनरी 5 lakhs एंड कैश 2 lakhs. बिजनेस में रिकॉर्ड हो गया. तो बिजनेस का जब अकाउंटिंग होगा, बैलेंस शीट होगा,
that will be different, and owner's balance sheet and accounting will be different. अब क्या होता है, मिस्टर एक्स विड्रॉज 5,000 फ्रॉम बिजनेस टू पे हिज सन्स स्कूल फीस. ठीक है, अब मिस्टर ए ने, मिस्टर एक्स ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, मिस्टर एक्स इन्वेस्टमेंट कितना था उसका, 7 lakhs था. ठीक है, अब उसमें से ही विड्रॉन कितना 5K माइनस कर दिया, तो कितना बचा 6,95,000 इज द नेट कैपिटल इन बिजनेस. तो दोनों का अकाउंटिंग सेपरेट होगा. ठीक है, देन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. सो ऑल द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी टर्म्स. कोई भी नॉन मॉनेटरी टर्म्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वांटिटी हो गया, मे बी सम स्केल हो गया, दैट इज़ नॉट रिलेवेंट हियर. हियर वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स इन मॉनेटरी टर्म्स ओनली. We can take example, a factory worth 50 crore, land worth 30 crore and computer worth 10 lakhs must all be expressed in uniform monetary terms to be recorded rather than as physical units. ऐसा नहीं होगा कि फैक्ट्री में इतने पोल्स हैं, जो भी है ऐसा नहीं, लैंड है तो ऐसा नहीं स्क्वायर मीटर रिकॉर्ड करेंगे, विल रिकॉर्ड ओनली द कॉस्ट. कंप्यूटर्स ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विल राइट, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स वुड बी देयर बट नॉट इन मेन अकाउंटिंग. वो कहाँ रहेगा, एफ में जो बैक एंड पे रहेगा कि मेरे पास में 10 lakhs के कंप्यूटर्स है, उसका क्या रिकॉर्ड है. ठीक है, इफ बिजनेस सेल्स गुड 50 lakhs एट होम एंड 1 lakh euro in the US, it must converted to one ruling currency. तो इसमें क्या देखना पड़ेगा, आपका रिपोर्टिंग करेंसी क्या है. जैसे आप इंडिया में बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है, आप बिज़नेस कर रहे हो इंडिया में, तो आपका रिपोर्टिंग करेंसी क्या है, आपका रिपोर्टिंग करेंसी रुपीज़ है. अब रुपीज़ के अलावा आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो, आप डॉलर में ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है, आप किसी और भी करेंसी में तुम जो ट्रांजैक्शन करते हो, दैट शुड बी कन्वर्टेड टू दी रिपोर्टिंग करेंसी. बेसिकली रिपोर्टिंग करेंसी, रिपोर्टिंग करेंसी इंडिया के केस में क्या होगा, रुपीज़ होगा. ठीक है, सेम अगर मैं यूएस में बिजनेस करता हूँ तो यूएस का रिपोर्टिंग करेंसी वुड बी द यूएस डॉलर. तो मुझे जो भी ट्रांजेक्शन से मैंने आईएनआर में कन्वर्ट किया है, दैट आई हैव टू कन्वर्ट इनटू यूएस डॉलर्स. सो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हो गया. अभी लिमिटेशंस क्या बताता है, इग्नोर्स दी नॉन मॉनेटरी एसेट्स. नॉन मॉनेटरी एसेट्स को इग्नोर करता है, वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस. सेकंड, इट इग्नोर्स इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को क्या करता है, वो इन्फ्लेशन को अवॉइड करता है, इन्फ्लेशन को इग्नोर करता है कि वी आर नॉट कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन हियर. सो वी हैव टेकन अ एग्जांपल ऑफ अ लैंड बॉट. हम लोग क्या किस पे चलते हैं, हम चलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे. किस पे चलते हैं, अकाउंटिंग किस पे चलती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट. सो वी बॉट लैंड 10 years ago, land at 40 crores एंड आइडेंटिकल लैंड, सेम लैंड हमने बाई किया आज की तारीख में 90 crores में, बराबर. तो अगर ये 40 crores का अभी रियल वैल्यू कितना है, 90 crores से करीब है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हमने 10 साल पहले परचेस किया था, वी आर रिकॉर्डिंग दैट 40 crores का लैंड एट 40 crore ओनली. हम उसको क्या करते हैं, रीवैल्यू नहीं करते, वी आर रिकॉर्डिंग ऑन अ हिस्टोरिकल कॉस्ट. फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ, जो भी आपके फाइनेंशियल एसेट्स होती है, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, फॉरेन क्रेडिटर्स हो गया, फॉरेन के क्रेडिटर्स हो गए, उनको रिपोर्टिंग पीरियड पे जब मैं बुक्स क्लोज करता हूँ, दैट टाइम आई एम रीस्टेटिंग. जैसे मेरे सिंपल सा एग्जांपल है, $100 का मैंने कोई मटेरियल परचेस किया, अभी $100 मैंने पे नहीं किया, तो मैंने $100 का जब मटेरियल परचेस किया था तब मेरी डॉलर की वैल्यू थी 90 रुपीज़. तो मैंने कितना रिकॉर्ड किया, 9,000 रिकॉर्ड कर लिया. अब एक महीने के बाद जब मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31 मार्च को, तब डॉलर का रेट है 92. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो $100 अभी भी जो मेरी लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग है, उसको मुझे 92 पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा.
है ना, करंट वैल्यू पे मुझे इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और जो 200 का जो डिफरेंस है दैट विल बी अनरियलाइज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। तो जो अपने क्या बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ होती है, टू दैट वी आर रिस्टेटिंग, नॉट दी अदर एसेट्स लाइक फिक्स एसेट्स हो गया, वो हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट में रखते हैं। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, अब पीरियोडिसिटी कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। से बिजनेस इज ऑन ए गोइंग कंसर्न बेसिस, मुझे जानना है, आई वॉन्ट टू नो वेदर आई एम इन अ प्रॉफिट और आई एम इन अ लॉस। सो एवरी पीरियडिकल financial is done for the particular period. That period can be 6 months, 9 months, 3 months or a month also. जनरली एक फाइनेंशियल ईयर होता है साल भर का, देन उसके बाद में होता है क्वार्टरली रिपोर्टिंग, 6 मंथ्स रिपोर्टिंग, एंड फॉर मैनेजमेंट पर्पज एंड फॉर इंटरनल कंट्रोल्स ऑल्सो मैनी लिस्टेड कंपनीज, और आई कैन से ऑलमोस्ट मैनी कंपनीज, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, they are closing books on every month. ठीक है, so what is the benefits of it? What are the benefits? So it facilitates the comparison. It facilitates the comparison. It facilitates the comparison. जैसे मैंने अभी 3 मंथ्स का क्वार्टरली मैंने फाइनेंशियल बनाया, पीरियोडिसिटी इज 3 मंथ्स, तो करंट 3 मंथ्स को मैं लास्ट 3 मंथ से कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, देन यूनिफॉर्म अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड मैचिंग द रेवेन्यू। उसमें कैसे होता है, मैं रेवेन्यू को बराबर मैच करता हूँ कि ये किस महीने में सेल्स जनरेट हुआ, बराबर, रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफ़र हुआ, तो ये सेल्स कौन से महीने में कंसिडर होगा, तो उसके सामने कितना रेवेन्यू के सामने कितना एक्सपेंसेस हुआ, बराबर ना, मैचिंग द रेवेन्यू विद द एक्सपेंसेस। 3 मंथ्स में मैं करता हूँ, पीरियोडिसिटी में मैं करता हूँ, पीरियोडिसिटी में मैं क्या करता हूँ, उसको बराबर एक्सपेंसेस को, रेवेन्यू को एक्सपेंसेस से मैच करता हूँ। जिस साल भर का मेरा है तो मैं देखूंगा अप्रैल से मार्च तक के मेरे रेवेन्यू आने चाहिए, अप्रैल से मार्च तक के मेरे खर्चे आने चाहिए, बराबर। सेम वे में 3 मंथ्स का है तो क्वार्टरली में देखूंगा वही सेल्स रिकॉर्ड हो जो मेरी 3 मंथ्स की हो, वही सेल्स रेवेन्यू मेरे पास में आए जो 3 मंथ्स का हो। ठीक है, सो दीज आर द बेनिफिट्स। Then accrual concept, very simple. We know we are following the accrual concept. So अभी हमने पहले भी पढ़ा है कि ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन अ मर्केंटाइल बेसिस। मैंने जितना सेल किया है वो सेल के बेसिस पर रिकॉर्ड होगा, मेरे परचेस के बेसिस पर रिकॉर्ड होगा, नॉट एज अ कैश रिसीव्ड और पेड। अभी मुझे कैश कितना पे किया मैंने परचेस के अगेंस्ट में, सेल के अगेंस्ट में मुझे कितना कलेक्शन मिला, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज द मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन। So revenue, the gross inflow of cash, receivable or other considerations arising from the ordinary course of business. A cost relating to operations of an accounting period to earn the revenue. So basically expense is what? It is matching the, so we are recording those expenses which will exactly match the revenue. Means the expenses we incur to get the specific revenue on a particular period. मतलब जो रेवेन्यू 3 महीने का, उसके सामने मैं वही खर्चा डालूंगा जो उस रेवेन्यू को कमाने के लिए मैंने खर्चा किया है, उस रेवेन्यू को मैंने अर्न करने के लिए खर्चा किया। एग्जाम्पल, मिस्टर जेडी बाइज क्लोथिंग, 50,000 का क्लोथिंग बाय किया, कैश कितना पे किया, अभी तो 20,000 ही पे किया, मतलब 30,000 का क्रेडिटर्स है, एंड सेल्स कितना किया उसने, 60,000 का, और कैश कितना मिला, अभी तक उसको 50,000 का मिला। लेकिन अभी मेरे रेवेन्यू क्या होगा, मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन्स, मर्केंटाइल बेसिस पे रिकॉर्ड करूँगा, तो माई रेवेन्यू वुड बी 60,000 एंड एक्सपेंसेस वुड बी 50,000। इन दोनों का माइनस करेंगे तो माई प्रॉफिट इज़ 10,000। जबकि मुझे पूरा कैश मिला नहीं है और मैंने पूरा कैश पे भी नहीं किया अभी तक। सो इट्स अ अक्रूअल कंसेप्ट। Accrual concept 2, timing differences in accrual accounting. So here we are comparing the cash received with the transactions. Like cash received before revenue is booked. मैंने revenue book किया ही नहीं, अभी तक तो मेरा sales हुआ ही नहीं भाई, उसके पहले मुझे cash मिल गया। That cash is nothing but advance for me
क्योंकि देयर इज़ नो सेल्स ट्रांजेक्शन्स, मेरे को एडवांस में पैसा मिला है, सो वो मेरी लायबिलिटी हो गई। देन कैश रिसीव्ड आफ्टर रेवेन्यू इज़ बुक्ड, ठीक है। अब मैंने जब रेवेन्यू बुक कर दिया, मुझे एग्जैक्टली उसके बाद में बुक करने के बाद में मुझे कैश मिला, ठीक है। जैसे मैंने रेवेन्यू बुक किया तो मैंने क्या किया, रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स मैंने खड़े कर दिए। उसके बाद में मुझे जो कैश मिला, आई विल रिड्यूस माई डेटर्स आउट ऑफ दैट। देन कैश पेड बिफोर एक्सपेंसेस इज बुक। अब मैंने क्या बोला, भाई मुझे कोई माल परचेस करना है, सामने वाला क्या बोला, तुम मुझे कैश पहले दो, मैंने उसको जाके कैश पहले दे दिया। अब तक मेरे पास कुछ परचेस हुआ नहीं हुआ, सो दैट इज़ नथिंग बट दी एडवांस गिवन। सो क्या हो गया, मैंने उसको एडवांस दिया हुआ है। देन कैश पेड आफ्टर एक्सपेंसेस इज बुक। एक्सपेंसेस बुक होने के बाद में मैंने कैश दिया, तो मतलब मैंने परचेस किया तो क्या होगा, मेरा एक क्रेडिट का एंट्री बनेगा, एक ट्रेड पेबल खड़ा हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ मतलब एक्सपेंसेस के लिए खड़ी हो जाएगी। और फिर मैंने जो उसको पे किया तो क्या करूँगा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी और ट्रेड पेबल को कम करके पेमेंट दिखा दूँगा। सो it is the timing difference in accrual accounting. So accrual is accounting is nothing, so cash payment, cash received is nothing to do with the accrual accounting. Then matching concept. मैचिंग कंसेप्ट सिंपल सा चीज़ है। मैंने जैसे मैं कर रहा हूँ 3 मंथ्स का मैं फाइनेंशियल बना रहा हूँ। 3 मंथ्स का फाइनेंशियल से मतलब 3 मंथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 3 मंथ्स का बैलेंस शीट तो एज ऑन डेट होता है, और नोट्स टू अकाउंट बना रहा हूँ, मैं एक फाइनेंशियल बना रहा हूँ 3 मंथ्स का। तो मैंने एक जो सेल्स लिया है, जो 3 महीने में मैंने जो सेल्स जनरेट किया है, आई विल कंसिडर दैट सेल्स अगेन। अभी उसके सामने मुझे एक्सपेंसेस भी लेना है, तो एक्सपेंसेस में कौन सा लूँगा, वो 3 महीने की जो सेल्स मैंने जो कमाने के लिए मैंने जितना एक्सपेंसेस खर्चा किया, दोज कॉस्ट विल ओनली बी चार्ज टू P&L। ऐसा नहीं कि भाई मैंने अभी 3 महीने का सेल्स तो दिखा दिया और खर्चा मैंने आगे का अभी 4 महीने का कर दिया है, तो मैं 4 महीने का एक्सपेंसेस डाल दूँ उसमें, तो ये नहीं होगा। तो इट इज़ कॉल्ड एज द मैचिंग कंसेप्ट। ऑल एक्सपेंसेस मैच विद द रेवेन्यू ऑफ ए पीरियड should be taken into consideration. If revenue is recognized, the expenses related to earning must also be recognized. So formula is periodic profit, है ना, what we are saying periodic profit. It can be for 3 months, 6 months, 1 year, है ना, quarterly, 1 month like. So periodic profit is equal to periodic revenue minus matched expenses, to match the expenses which we incurred to earn this periodic revenue. So detailed example we can say PK buys 10,000 garments at 100 per piece. 10,000 garments उसने buy कर दिया, he sells 8,000 pieces only. तो सेल्स कितना हो गया उसका, 8,000 pieces हुआ, 150 पे उसने सेल कर दिया ओवर 12 months। अभी हम लोग किस पीरियडिसिटी इज व्हाट, 12 months। ही पेड 11 months रेंट एट 3,000 पर मंथ। अभी 11 महीने का उसने रेंट पे किया है, ठीक है। हम लोग पीरियडिसिटी की क्या बात कर रहे हैं, 12 months की बात कर रहे हैं। तो 11 महीने का जब रेंट पे किया है तो 1 महीने का रेंट का मुझे प्रोविज़न लेना पड़ेगा, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल्स फॉर 12 months, ठीक है। तो 3,000 का वो मेरे पास में प्रोविज़न हो जाएगा। प्लस अब मैं परचेस तो मैंने क्या किया, 10,000 गारमेंट किया, उसका जो भी कॉस्ट था 100 रुपीज़, लेकिन मैंने सेल कितना किया है, 8,000। तो 8,000 पीसेस मेरी सेल्स है। तो 8,000 पीसेस को सेल करने के लिए मैंने वही 8,000 पीसेस कितने में परचेस किए थे, दैट कॉस्ट विल बी रिकॉर्डेड हियर। सो अक्रूवल कंसेप्ट डिक्टेट्स द शॉप रेंट इज फॉर 12 months। सो 36 months हो गया, 36,000 हो गया, कैसे, 12 महीने का, 3 months इज द पर मंथ रेट। अगेन सेल्स आई मेड फॉर 8,000 पीसेस, तो 8,000 पीसेस ही उसकी कॉस्ट यहाँ मैं P&L में डेबिट करूँगा। और जो 2,000 पीसेस अभी तक मेरे 12 months में बिके नहीं है, दैट इज़ नथिंग बट माई इन्वेंटरी एसेट्स। मेरे इन्वेंटरी में पड़ा है, मैं 100 रुपये से खरीदा था, वो इन्वेंटरी में पड़ा हुआ मेरा।
तो 8000 का जो सेल्स मुझे मिला, तो उसके कमाने के लिए जो मैंने कॉस्ट कर जो इनकर की, दैट कॉस्ट विल ओनली बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। सो ये प्रिंसिपल ऑफ इनकम रिकग्निशन कैसे होगा, ठीक है ना, पीरियडिसिटी बेसिस पे। देन मैचिंग कंसेप्ट, एक्सपेंसेस में वही मैच करके डालूंगा वो। वी आर फॉलोइंग दी हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिकली ना, हर चीज़ वी आर रिकॉर्डिंग ऑन ए हिस्टोरिकल कॉस्ट। एंड प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, we are disclosing every transactions basically. Just if there is no basic account fundamental principles we followed, so we have to make the disclosure for that. Like if there is no going concern, then we have to make a disclosure. Then going concern concept. So financial statements are normally prepared assuming the enterprise is going concern and will continue operation in the foreseeable future. अभी मुझे दिख रहा है कि भाई मेरे पास में कोई सामने कोई आगे हर्डल नहीं है, मेरा बिजनेस चल रहा है, कोई ना कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस से मुझे कुछ प्रॉब्लम है, ना कोई गवर्नमेंट पॉलिसी से मुझे कोई दिक्कत है, तो माई ऑपरेशन विल कंटिन्यू बेसिकली। सो दैट इज नोन एज द going concern. There is assumed to be neither the intention और गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजमेंट का कोई इंटेंशन भी नहीं है कि बंद करने का, और नॉट नीड टू लिक्विडेट, और ज़रूरत भी नहीं है, ऐसी कोई पॉलिसी भी नहीं आई है, कोई ऐसा इन्वायरमेंट या ऐसा कोई पिक्चर, ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा वॉर हो गया, कोई बीच में कोरोना आ गया, तो बिजनेस मैनी बिजनेस हैव टू लिक्विडेट। तो उस समय क्या हो गया था, गोइंग कंसर्न एजम्पशन टॉस पे चला गया था। तो मैनी ऑर्गेनाइजेशन वी आर नॉट कॉन्फिडेंट कि देयर बिजनेस विल रन फॉर नेक्स्ट 1 year और 2 year। तो ऐसे में क्या होता है ना, दैट फैक्ट वी हैव टू मेंशन कि बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ नो गोइंग कंसर्न एजम्पशन इन दी फाइनेंशियल्स इन द कंपनी, दैट फैक्ट वी हैव टू मेंशन। तो उसमें क्या होता है ना कि फिर सब चीज़ प्रेजेंट वैल्यू पे आने लगती है, क्योंकि अभी बिजनेस ही बंद होने वाला है, तो मेरी लैंड है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, मतलब उसको उस तरीके से दिखाना पड़ेगा, बिकॉज आई विल नॉट फॉलो द सेम अकाउंटिंग विच द अदर कंपनीज आर फॉलोइंग हु आर हैविंग द गोइंग कंसर्न एजम्पशन विद दैम। मेरा अकाउंटिंग डिफरेंट हो जाएगा। The concept justifies valuing the assets based on the historical cost rather than the immediate resale value. अगर बिजनेस बंद होने वाला है तो क्या हो जाएगा भाई, कोई कंसर्न नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इमीडिएट रीसेल वैल्यू क्या है आपकी एसेट्स की, उस पर आपको लेकर आना पड़ेगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं चलेगा। एसेट्स आर केप्ट फॉर जनरेटिंग फ्यूचर बेनिफिट्स, नॉट फॉर इमीडिएट सेल। हम लोग एसेट्स क्यों रखा है, इमीडिएट सेल करने के लिए रखा है, नहीं रखा है, इट इज़ फॉर फ्यूचर बेनिफिट, गोइंग कंसर्न के लिए। सो शॉर्ट रन वैल्यू फ्लक्चुएशंस आर इग्नोर्ड। तो शॉर्ट रन का जो वैल्यू होता है वो इग्नोर करता है। अगर कोई ऐसा दिख रहा है फ्यूचर में कि भाई मेरा बिजनेस का गोइंग कंसर्न हैम्पर होगा, देन ओनली वी आर सेइंग कि यस गोइंग कंसर्न एजम्पशंस इज नॉट फॉलोड। Example is given, during a pandemic, if a business suffers heavy losses and it's actually shutting down, failing to disclose that going concern assumption is under question would be setback and mislead stakeholders. पैंडेमिक में अगर किसी बिजनेस को लगता है कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन इज नॉट देयर एंड दे आर fail to disclose that fact in their financials, that would be setback and mislead stakeholders को क्या करेगा, वो गलत इन्फॉर्मेशन देगा। उनको क्या लगता रहेगा कि यस ये बिजनेस भी चल रहा है, चलते रहेगा, लेकिन अभी गोइंग कंसर्न है नहीं गोइंग कंसर्न, तो वो फैक्ट उनको मेंशन करना चाहिए। कॉस्ट कंसेप्ट वर्सेस रियलाइजेशन कंसेप्ट। हमने जैसे देखा कि वी आर रिकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट डिटरमाइंड बाय द हिस्टोरिकल कॉस्ट। हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो
in inflationary situation, acquisition cost, losses, relevance, land bought 2000 and costing 1 lakh 22,000. It also causes loss of comparability regarding the efficiency of old assets and new assets acquired. So basically we are following the historical cost here. Then realization concept. कभी कभी होता है कि closely follows the concept. Any change in the value of asset is only recorded when the business actually realizes it. If the land is bought 2000 and current value is 1 lakh 2000, 1 lakh increase is ignored and recorded because and not recorded because it has not materialized through a sale. रियलाइजेशन कंसेप्ट में क्या बोलता है कि अभी जैसे मेरा कोई लैंड का कॉस्ट है, लैंड का कॉस्ट मेरे बुक्स में हिस्टोरिकली लिखा हुआ है 2000, आज करंट वैल्यू उसका हो गया 1 लाख 2000, लेकिन आई कैन नॉट रिकॉर्ड 1 लाख 2000 का कॉस्ट. हाँ, जब तक मैं उसको सेल करूँगा नहीं तब तक मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूँगा, लेकिन जिस दिन मैं सेल करूँगा तो क्या करूँगा, मैं उसको जितना भी मार्केट वैल्यू है उससे निकालूंगा, नॉट रिकॉर्ड बिकॉज इट हैज़ नॉट मटेरियलाइज थ्रू अ सेल. जब सेल हो जाएगा तब फिर क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट तो मेरी उतनी रहेगी, लेकिन वो 1 लाख 2000 जो मार्केट वैल्यू है दैट विल बी रिकवरेबल, लाइक है ना, मटेरियलाइज थ्रू अ सेल. हाउएवर मॉडर्न प्रैक्टिस समटाइम्स अलाउ एसेट्स रीवैल्यूएशन थ्रू अ रीवैल्यूएशन रिजर्व. हमने किया हुआ एक्चुअली. आई वॉज इन अ steel company, so that time we revalued our assets, we created the revaluation reserve. तो many company revalues their assets, उनको लगता है कि भाई मेरी वैल्यू से बढ़ती होगी एसेट्स की, तो दे आर डूइंग एक्चुअली. और से सपोज इफ दे वांट टू से नो कि what the exact value of their assets, so many companies are doing the revaluation of the assets. बट हिस्टोरिकल कंसेप्ट में क्या होता है ना, कंपेरेटिबिलिटी भी होता है ना, हमारा चला जाता है. जैसे हमने पहले एग्जांपल देखा था, हमने कोई एक लैंड लिया जो भी हमने सपोज परचेज़ किया एक स्मॉल अमाउंट पे, से सपोज 10 लाख रुपीज़ पे, सेम टाइप का लैंड हमने 50 लाख में रिकॉर्ड किया. अब देर इज़ नो कंपेरेटिबिलिटी. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 + 50 60 लाख का लैंड दिखाना पड़ेगा. अगर आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका वैल्यू 1 करोड़ है ना. सो देर इज़ नो कंपेरिजन्स, बेसिकली कंपेरेटिबिलिटी इसमें चली जाती है हिस्टोरिकल कॉस्ट में. देन ड्यूअल एस्पेक्ट एंड कंसेप्ट. सो वी नो द अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. सो एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 impacts, डेबिट एंड क्रेडिट. So here there are the 8 combinations how the transaction moves basically. So first is increase one asset, decrease other asset. So we can take one example, simple example here we can take. जैसे अभी जैसे we are taking say about debit here and credit here. इसमें लैंड है, ठीक है, इसमें 5 लाख का लैंड है, ठीक है, इसमें कैश है, इसमें 3 लाख का कैश है, ठीक है. टोटल इज हाउ मच, 8 लाख. ठीक है, रुपीस. अभी यहाँ पे कैपिटल डाल देता हूँ मैं. ये सब बैलेंस है बेसिकली. कैपिटल है 4 लाख का, ठीक है, क्रेडिटर्स है 4 लाख का. टोटल इज हाउ मच, 8 लाख. So we are checking the all 8 scenarios here. Increase one asset, decrease other assets. Say suppose I am increasing this asset 5 lakhs को. 5 lakhs को मैं अगर इंक्रीज़ करता हूँ 1 लाख से, मतलब मैंने और लैंड बढ़ाया तो 6 लाख हो गया. एंड डिक्रीज वन एसेट
कैश को मैंने कम किया 1 लाख से, तो बैलेंस टोटल कितना हो जाएगा, हमारा 8 लाख ही रहेगा, ठीक है। सेकंड बोलता है इंक्रीज एन एसेट इंक्रीज अ लायबिलिटी। अब मैंने क्या किया, एसेट को इंक्रीज़ किया यहाँ पे, सपोज मैंने लैंड बाय किया 1 लाख का और लैंड बाय किया, ये मैंने लैंड बाय किया, क्रेडिट पे बाय किया, क्रेडिट पे बाय किया, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स आ गया मेरा, बराबर। तो ये कितना हो गया, 9 लाख हो गया, यहाँ पे भी 9 लाख हो गया मेरा। सो डेबिट क्रेडिट सेम, डिक्रीज इन वन एसेट इंक्रीज अनदर एसेट। अब एक एसेट में डिक्रीज मतलब 3 लाख को मैं डिक्रीज करता हूँ और एक एसेट बढ़ाता हूँ, तो क्या होगा, टोटल विल बी 9 लाख। डिक्रीज वन एसेट डिक्रीज अ लायबिलिटी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, डिक्रीज किया लायबिलिटी, यहाँ से इसको भी डिक्रीज कर दिया और यहाँ से इसको भी डिक्रीज कर दिया, क्रेडिटर्स भी अगर कम हो गया तो बैलेंस शीट विल रिमेन सेम। जैसे मैंने क्रेडिटर्स था, ठीक है, क्रेडिटर्स को मैंने लाख रुपया पे कर दिया, तो यहाँ से क्रेडिटर्स हट गया मेरा, क्रेडिटर्स मेरे को पे करना था, और मेरा कैश कितना हो गया, यहाँ पे 2 लाख हो गया, 1 लाख का मैंने पेमेंट किया, तो वापस मेरा बैलेंस शीट कितना हो गया, 8 लाख का हो गया। देन इंक्रीज इन वन लायबिलिटी डिक्रीज अदर लायबिलिटी, सेम वे में, जैसे इंक्रीज एक लायबिलिटी हमने कर दिया, इंक्रीज को एक लायबिलिटी को हमने इंक्रीज कर दिया और अदर को कम कर दिया। देन इंक्रीज वन लायबिलिटी इंक्रीज एन एसेट, एसेट में इंक्रीज किया, लायबिलिटी में इंक्रीज किया। डिक्रीज वन लायबिलिटी इंक्रीज अदर लायबिलिटी, एक लायबिलिटी को डिक्रीज किया, एक को बढ़ाया। डिक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज अदर लायबिलिटी, डिक्रीज लायबिलिटी एंड डिक्रीजेज एन एसेट, एसेट को मैंने डिक्रीज कर दिया और लायबिलिटी को भी डिक्रीज कर दिया, दोनों से डिक्रीज किया, तो मेरा बैलेंस शीट का टोटल विल रिमेन सेम। तो इक्वेशन कैसा बनता है, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स बोलते हैं, है ना। इसमें सब आ गया, फिक्स एसेट्स भी आ गया, करंट एसेट भी आ गया, तो इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में भी सब आ गया, करंट लायबिलिटी आ गया और नॉन करंट लायबिलिटीज भी आ गया, इज इक्वल टू इक्विटी। देन इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, क्या हो गया, इक्विटी हो गया। ये दो इक्वेशन है इसके। नाउ वी आर टेकिंग एग्जांपल, कैपिटल 1,20,000, बैंक लोन 75,000, अदर लोन 75,000, मशीनरी 2 lakhs, कैश 1 lakh, so total is 3 lakhs। सिंपल ले लेते हैं यहाँ पे, एक बार इजी हो जाएगा। कैपिटल 1,50,000, बैंक लोन 75,000, अदर लोन 75,000, मशीनरी 2 lakhs, कैश 1 lakh, कितना हो गया, 3 lakhs हो गया। ये कितना हो गया, परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर 50,000 कैश। अब मैंने मशीनरी परचेज किया 50,000 का, तो मेरे यहाँ पे 50 के ऐड हो जाएगा मशीनरी में और 50 के यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो टोटल विल रिमेन 3 lakhs। परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 50 और यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा 50 लायबिलिटीज़ में, अदर लोन में, तो कितना हो जाएगा 3,50,000। रीपे बैंक लोन 50,000 इन कैश, मैंने बैंक लोन लेकर रखा 50,000, उसको रीपे किया, रीपे करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से कैश मेरा कम होगा, तो अगेन द टोटल विल कम टू 2,50,000। रेज बैंक लोन 50,000 टू पे ऑफ अदर लोन, मैंने क्या किया, एक नया लोन लिया, किसके,
अदर लोन को मैंने रीपे करने के लिए 50,000 का, तो क्या होगा, मेरा अदर लोन बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो रेज बैंक लोन 50,000 टू पे ऑफ द अदर लोन, इंक्रीज द बैंक लोन और डिक्रीजेज द अदर लोन मेरा कम हो जाएगा और मेरा बैंक लोन बढ़ जाएगा। सो टोटल विल रिमेन 3 lakhs। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ याद कर लो, नेवर एंटिसिपेट्स फॉर प्रॉफिट, ऑलवेज प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। नेवर एंटिसिपेट फॉर द प्रॉफिट, ऑलवेज प्रोवाइड फॉर लॉसेस। मतलब मुझे अगर लगता है कि भाई ये मेरा पॉसिबल लॉस हो सकता है, तो आई हैव टू प्रोवाइड दैट लॉस। लेकिन अगर मुझे लगता है कि ये इनकम में रिकॉर्ड कर सकता हूँ, आई हैव नॉट अर्न दैट इनकम, बट मार्केट वैल्यू ऐसा है कि वो बोलता है कि दैट इनकम आई कैन बी रिकॉर्डेड, सो आई विल अवॉइड रिकॉर्डिंग दैट इनकम। सिंपल सा चीज़ है, ये कन्वेंशनल प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का कि जितने भी लॉसेस हैं ढूंढ ढूंढ के निकालो, उसको प्रोवाइड करो, और दिखता है अगर इनकम या हो सकता है, अवॉइड दैट। सो अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर इनकम। फ्यूचर इनकम हो सकता है मुझे, यार इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ, नो, यू कैन नॉट रिकॉर्ड। अब ये देखो, ये फंडामेंटल आपको याद रखने हैं। कभी भी आपका डिस्कशन होगा, वो बोलेगा अरे यार ये रिकॉर्ड, इसको अपन रिकॉर्ड क्यों नहीं कर सकते यार, ये तो अपना प्रॉफिट होगा, इनकम बढ़ जाएगा। देन आपको आके ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बताना है, ये कन्वर्जेटिज्म प्रिंसिपल की प्रूडेंस प्रिंसिपल बताना है कि नेवर एंटिसिपेट फॉर प्रॉफिट, ऑलवेज प्रोवाइड फॉर लॉसेस। When there are alternative values of an assets, choose the method leading to the lesser value, है ना। जैसे हम लोग इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं, क्या है उसका कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, जो भी लेस होगा, अरे भाई ज़्यादा क्यों नहीं लेते यार, मार्केट वैल्यू पे मेरा माल बिकेगा ना, लेस क्यों ले रहे हो, नहीं लेस लेंगे। सो दिस इज़ द प्रूडेंस प्रिंसिपल। हमको ज़्यादा ओवर स्टेट नहीं करना है, प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है। द कंसेप्ट रिक्वायर्स प्रूडेंस, न्यूट्रलिटी एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। पर्पज़ क्या है, प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स फ्रॉम मेकिंग द डिसीजंस बेस्ड ऑन बूमिंग बट अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे करेगा, बूम करके दिखा दिया, बट इट इज़ नॉट येट अर्न। Mr. X runs a computer business. He buys 10 computers at 20,000. If he expects to sell them 25,000, he must ignore that profit until the sale occurs. जैसे अभी किसी ने X ने बाय किया, 10 कंप्यूटर्स बाय कर लिए उसने। अब वो क्या बोलता है, एक कंप्यूटर मैंने किसने बाय किया, 20 में, लेकिन उसको लगता है मार्केट में मैं 25 में उसको बेच दूंगा, लेकिन वो अनरियलाइज जो प्रॉफिट है 5,000 का, that we should not be recorded. We should ignore that. However, if market price drops, लेकिन अगर मार्केट प्राइस ड्रॉप होता है, उसका 20,000 में मैंने परचेज किया, 17,000 हो गया, तो 3,000 का प्रोविज़न मुझे इमीडिएट करना पड़ेगा कि भाई 3,000 मेरा लॉस है, ऐसा है। दिस इज़ कॉल्ड द प्रूडेंस प्रिंसिपल। क्या बोलने का, प्रूडेंस प्रिंसिपल। ऐसे बड़े बड़े फंडे आप लोग समझ लो, याद कर लो अभी से, ये फंडामेंटल्स आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो देखो अकाउंटिंग एंट्री तो कोई भी बता देगा, लेकिन जो फंडामेंटल्स है, जो अकाउंटिंग एंट्री का बेस है, वो आपको कोई नहीं बताएगा। सी दैट्स व्हाई यू टू लर्न दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। देन कंसिस्टेंसी एंड मटेरियलिटी कंसेप्ट। सो मेंटेनिंग द फोकस एंड कंपैरेबिलिटी। अगर हमको फोकस रखना है हमारे बिजनेस पे या जो भी है, वी हैव टू फॉलो द कंसिस्टेंटली द अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर एक साल को या
एक पॉलिसी फॉलो किया, नेक्स्ट ईयर अलग पॉलिसी फॉलो किया, तो कंपेरेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल. For example, applying the same depreciation method or inventory valuation method over the years. जैसे inventory valuation method है, depreciation method we are applying for over the years. अब उसमें exceptions बोलता है, changes are only allowed to comply with accounting standards. अभी accounting standards में कोई rule आया, मान लो कि we should not follow the LIFO method, last in first out. Or if accounting say this is not the principle we have to follow, and if we are following that, then to make the changes we can do that change again. If anything comes under the law, then we have to change at once actually our accounting policy. Now the concept of materiality, ये बहुत important है बेटा. Materiality जो है, it's a subjective thing. It is totally based on the accountant's judgment. Accountant का जो judgment है ना, fully उसके ऊपर depend करता है. अब कोई कंपनी है, उसके लिए 50,000 भी बड़ा अमाउंट हो सकता है, और किसी और के लिए 50,000 एक स्मॉल अमाउंट हो सकता है. जैसे आई वॉज वर्किंग, once I worked with the CFM also. That time we got the audit of a very big government organization. So what they told us, they told that 0.5 is 50 lakhs for us. 0.5 is 50 lakhs for us. So their accounting are in terms of crores basically, and 5 lakhs was the immaterial amount for them. And when I moved to the steel organization, so again their business were in crores, but not as compared to that other government institute. So for them materiality was 50,000. So below 50,000 they are not say doing anything, or they are not following the a proper accounting policy and everything. So they can just write it off as a small amount. So here we can take a very good example of calculators basically. I mean, calculators are part of the asset because we are going to get its benefit for more than 1 year, but as per the value, its value is very negligible. So we will not carry that value of calculators or calculators in our FAR and go on depreciating it over a period of its life, maybe 6 or 7 years. No, we are not going to do that. So what we are saying is this amount is very immaterial for us, so we are going to charge it once in our books of accounts, or maybe books of account means we are charging it to the profit and loss account. So this is the materiality concept. Financial statements and their purpose. So what is the purpose? Simply their purpose is the communicating with the stakeholders. Stakeholders को हम लोग क्या करते हैं? Communicate करते हैं financials. और systematic record करके ascertain the financial performance, profit है, loss है, क्या है, position, financial position के assets कितना, liabilities कितना, and communicate it to the interested user group. Financial statements are structured representations used by management to make the public communications. So companies are making the public communications because companies are having their shares in the market, they are having the investors. So to communicate them, or to communicate to the other investors or the creditors, so it's a financial statements whereby they can communicate to the third party. Basically they will show the financial performance and their positions. To be useful, the information provided must possess the specific qualitative characteristics. ठीक है. So there are 4 principal qualitative characteristics में there are four principles. So financial should be understandable, it should be relevant, it should be reliable, and it should be comparable. Understandability में what they are saying, complex matter should not be excluded. So we are saying no, our investor
will not going to understand this complex matter, so better to avoid it. No, this is not allowed. You have to put the all complex matters there. Relevance, evaluate the past, present or future event. So what is relevance? That you have to put. Reliability means material error should not be there. Small errors we can say, but it should be free from the material errors basically. And comparability, the financials should be able to compare basically. So if we are presenting the 6 months financials, we are giving the results for 3 months. So comparative numbers for the last 3 months or corresponding last year's 3 months should also be there. So it should have the correct comparability. There are furthermore qualitative characteristics. So materiality we discussed. Then faithful representation, substance over form, very important. So legal form may be different, but we have to follow the substance. Say suppose we can take example here, one organization has been sold to the other, but the legal formalities are still pending. So legally that business is not been transferred, but again the risk and reward is taken by the transferee. Transferee is facing the risk and getting the reward also. So we will go by the substance, not the legal form. We will go by the substance. We will say कि no, though the legal formalities are pending, legal formalities pending है, लेकिन ये जो है बिजनेस वो ट्रांसफ़र हो चुका है. तो हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग जिसके हाथ में वो बिज़नेस गया है, जो रिस्क का रिवॉर्ड बेयर कर रहा है या उसको एंजॉय कर रहा है, उसके लिए किया जाएगा. प्रूडेंस we discuss full, fair and adequate disclosures. All full, fair and adequate disclosures should be there. Then completeness, it should be complete in all respect. So now we'll take some practical examples to understand correctly these concepts. So we are going to the illustrations now. So entity concept, Mr. X started a business 7 lakhs, purchase machinery 5 lakhs, balance in cash means 2 lakhs, accounting 7 lakhs as a capital. He spent 5,000 for family expenses, so that will be a drawing from the business, and there his net investment will be 6,95,000. I think we discussed this in our last slides. Money measurement, so transactions are only recorded, measure in monetary terms. So 1 acre of land, 2 floors of computer, 10 machines are under measurement, are under different measurement units. We should not record that. We have to record their monetary values like land 30 crores, factory 50 crores and computers 10 lakhs. Furthermore, I told the conversion. So we have to record the transaction in reporting currency basically. Reporting currency. So we are doing the transaction in multiple currency, maybe in euro, maybe dollar, but our reporting currency is rupees. So at the end we have to convert all those foreign currencies into rupees. Then accrual concept, we took one example earlier. 50,000 is cost and 60,000 is sales, then 10,000 would be his profit basically. Cash received, cash paid is not nowhere related. We have to record the mercantile transactions basically. Then matching concept, we have taken the example of 8,000 pieces. He purchased 10,000 pieces and he sold only the 8,000. So cost related to 8,000 pieces will only be considered. Again the rent paid for 3 months, 3,000 per month spending need to be considered. So we took this example earlier also. We have taken this example also. 20,000 the cost of computers,
their market price is showing 25,000, but he cannot restate the value of computers from 20,000 to 25,000 because of principle of prudence. But if market value goes down to 17,000, then he has to provide 3,000 rupees immediately. Now some conceptual evaluation. First, the concept helping keep business affair free from the influence of personal affair is not matching concept, it's a fall. It is known as the entity concept, है ना. The concept helping business affairs free from the influence of the personal affairs. पर्सनल अफेयर जो इसका खुद का बिजनेस है और बिजनेस अफेयर जो बिजनेस है, नॉन एज दी एंटिटी कंसेप्ट. एंटिटी कंसेप्ट मीन्स दैट एंटरप्राइज इज लायबल टू द ओनर फॉर इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर. ट्रू, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वही उसके लिए कैपिटल होगा बिजनेस एंटरप्राइज के लिए. एक्रूअल मीन्स रिकग्निशन एज मनी इज रिसीव्ड और पेड, सो इट इज़ फॉल्स. इट इज़ द मर्केंटाइल ट्रांजेक्शंस on accrual basis, not the actual cash received or paid. Convertism concept states that no changes should be counted unless it has materialized. False. This is the definition of realization concept. Convertism principle states that no longer change should be counted unless it is materialized. The concept of consistency implies no flexibility as not to allow the introduction of improved method of accounting. No, false. ऐसा नहीं. Improved method of accounting, say suppose if the government or the say SEBI or maybe ICI introduce some improved method of accounting to have the true and fair picture, then we have to adopt that. Then materiality depends. The material depends upon the amount of the item and not upon the size of the business, nature and level of information, level of person making the decision, etc. False. It's a subjective principle. It depends on all those factors. जितने factors थे ना, ये सब के ऊपर depend करता है. Nature and the level of information, level of person making the decision, business, everything. Accrual basis accounting is the method where revenues and costs are reflected in the period actual receipts or actual payments are made. No, false. Actual receipts actual payment का कोई संबंध नहीं है. It's a mercantile basis. So these was the concepts on the accounting basically. इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना. ये एक फंडामेंटल है. 2-3 बार उसको पढ़ना, 2-3 बार आप देख सकते हो. ये और भी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल होगा तो आप मेरे ये यूट्यूब चैनल पे आप क्वेश्चन रेस कर सकते हो टू हैव दी गुड क्लैरिटी. लेकिन ये चीज़ आप ऐसा मत समझना ये थ्योरी है तो मैं इसको पढ़ के मैंने छोड़ दिया, मुझे मार्क्स मिल गए, ऐसा नहीं है. इसको एकदम पचा लेना क्योंकि पूरा अकाउंटिंग इस पर डिपेंड करता है. लगता है ऐसा थ्योरी है, इसके बाद में आप पढ़ोगे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप, लेकिन पूरा अकाउंटिंग इस पर डिपेंड करता है. कोई भी ट्रांजेक्शन का बेस, फंडामेंटल्स देखो, मेटेरियलिटी देखो, आप इंपॉर्टेंट चीज़ कितना है. फिर प्रूडेंस है, देखो हमको कैसे हमको प्रोवाइड करना है. अक्रूवल तो एक अकाउंटिंग का कंसेप्ट है ही है. फिर मैचिंग कंसेप्ट है. इसके ऊपर ये जो जितने भी कंसेप्ट आपको बताएं, अब इसके आगे आने वाले जो बड़े बड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जो भी बड़े बड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसके नटशेल में ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही है. हमने क्यों फॉलो किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? क्योंकि नटशेल में कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर रहे थे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को, कहीं हम लोग मैचिंग कंसेप्ट मिस कर रहे थे. जैसे प्रॉफिट हो रहा था एज़ पर कंपनीज एक्ट, एज़ पर अकाउंटिंग, एज़ पर आई गैप और एज़ पर इंड एस, लेकिन हम लोग टैक्स का प्रोविज़न कर रहे थे एज़ पर इनकम टैक्स, सो इट वाज नॉट मैचिंग. तो देखो हमने एक डिफर टैक्स का एक बड़ा सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया. तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ है, इसका बेस इज़ दी अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स. ओके, so that's all for now. Thank you very much.